السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر KTR نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کے زوال کا تلنگانہ سے آغاز ہوگا۔ ملک میں امبیڈکر کے دستور پر نہیں بلکہ مودی دستور پر عمل ہو رہا۔ بعد ازاں KTR نے کہا ہے کہ دستور اور قوانین کے مطابق کام کرنے کی امید کرتے ہوئے TRS نے صدارتی انتخابات کے لیے یشونت سنہا کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے یشونت سنہا کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی، جن کی TRS کے ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کرائی جائے گی۔ KTR نے کہا ہے کہ مرکز میں آمرانہ حکمرانی کا دور چل رہا، دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی، گزشتہ 8 سال سے ریاستوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ملک کے جن 8 ریاستوں میں BJP کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر ان حکومتوں کے خلاف غیر جمہوری اقدامات سے ڈرانے دھمکانے اور مقامی حکومتوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش کی جا رہی، جس کی TRS سخت مذمت کرتی ہے۔ دستوری اداروں کا بیجا استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے خلاف کارروائی کی جا رہی، اس کے خلاف آواز اٹھانا دستور پر یقین رکھنے جماعتوں اور قائدین کی ذمہ داری ہے۔ BJP کے غیر جمہوری اصولوں کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے صدارتی انتخابات میں یشونت سنہا کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ KTR نے کہا ہے کہ NDA کی صدارتی امیدوار دروپدی مرمو سے ہمارا کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے، وہ اچھی شخصیت کی مالک ہو سکتی ہیں۔ قبائلی خاتون کو امیدوار بنانے کا دعویٰ غیر مناسب ہے۔ 2 جنوری 2006 کو اڑیسہ میں اسٹیل پلانٹ کی مخالفت میں احتجاج کرنے والے 13 قبائلیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تب BJP کی تائید سے قائم ہونے والی حکومت میں دروپدی بھی وزیر تھیں، تب انہوں نے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ گنگاپور نرمل میں واقع اقلیتی قامتی ہائی اسکول کے لیے کرائے پر حاصل کی گئی عمارت کا کانگریسی قائد و کل ہند پولنگ بوتھ کمیٹی ریاستی ترجمان MA لطیف نے یہاں کا صحافیوں کے ہمراہ دورہ کیا۔ اولیاء طلبہ کی خواہش اور اصرار پر انہوں نے یہاں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اقلیتی قامتی اسکول کو شہر نرمل سے دور 10 کلومیٹر پر رکھا جا رہا، اور وہ بھی ایک کرائے کی عمارت میں جو غیر کارگردر و ناکارہ ہے۔ انہوں نے اپنے دورے کے موقع پر وارڈن امتیاز سے بات چیت کی اور تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے عمارت کی زب و حالی پر افسوس کا اظہار کیا۔ جہاں معصوم طلبہ مقیم ہوتے ہیں وہاں پر اسکول کی حصار باؤنڈری وال نہیں ہے۔ اگر کوئی طالب علم باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسکول لب سڑک ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جو ذمہ داروں کی عدم دلچسپی اور غیر ذمہ داری کا کھلا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جہاں طلبہ کی کثیر تعداد زیر تعلیم اور زیر اقامہ ہو، وہاں بیت الخلاء اور طہارت خانوں کا نظم بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن یہاں بیت الخلاء اور طہارت خانے کم تعداد میں ہیں اور پکوان کے لیے کوئی موزوں جگہ نہیں ہے۔ تلنگانہ کے بشمول ملک کی دیگر ریاستوں میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے واقعات کے دوران واضح اشارے سامنے آئے ہیں کہ اومیکرون کے ذیلی اقسام BA.4 اور BA.5 انفیکشن سے پہلے متاثر اور ویکسین کے انفیکشن کے ذریعے پیدا قوت مدافعت سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے GHMC اور اس کے اطراف و اکناف کے اضلاع میں COVID-19 کے کیسز میں یومیہ اضافہ ہو رہا۔ کیسز میں اضافے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون کے یہ دونوں ویریئنٹ قوت مدافعت سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے GHMC اور اس کے قرب و جوار کے اضلاع میں کووڈ کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا۔ یہ اضلاع ماضی میں کووڈ کی 3 لہروں کو جھیل چکے ہیں۔ CSIR کے سینئر سائنسدان ڈاکٹر ونود سکاریا نے ٹویٹ کرتے ہوئے BA.5 کے اثر کو اجاگر کیا اور کہا کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پہلے سے حاصل قوت مدافعت اومیکرون کے ذیلی اقسام سے تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ ماضی میں کووڈ کے انفیکشن
انफेक्शन की लहर में इसकी नौयत चकरदार रही है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर अजीज नवाज राव ने कहा है कि कोविड इन्फेक्शन से बचने का वाहिद हल मास्क का इस्तेमाल है। उन्होंने कहा है कि हमने एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम पर जोर दिया कि वो बगैर मास्क के घर से बाहर ना निकले। 10 साल से कम उम्र बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा है कि कोविड इन्फेक्शन से महफूज रहने के लिए चंद दिनों तक घरों पर ही रहना बेहतर रहेगा। डॉक्टर सकारिया ने ट्वीट करते हुए घरों में हवा और रोशनी का मुनासिब नज्म रहने से इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मशहूर नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर हक़ाइक़ की जांच करने वाली वेबसाइट ALT न्यूज़ के बानियों में से एक हैं। उनको दिल्ली पुलिस ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और दुश्मनी को फरोग़ देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। ALT न्यूज़ के शरीक बानी प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को एक मुख्तलिफ मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। सिन्हा ने इल्जाम लगाया कि लाजमी नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने ट्वीट किया कि बार बार की दरख्वास्त के बावजूद हमें FIR की कोई कॉपी नहीं दी जा रही। ताहम पुलिस ने कहा है कि मोहम्मद जुबैर को एक केस की तफ्तीश में तलब किया गया था जो स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और रिकॉर्ड में काफी सबूत होने के बाद गिरफ्तार किया गया। उनसे अभी भी पूछताछ जारी है और पुलिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रही ताकि मजीद तहवील हासिल की जा सके। इसी दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की और ट्विटर पर एक पोस्टर जारी करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बगैर कोई नोटिस के और नामालूम FIR के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 197 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मंगल को सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 197 करोड़ 31 लाख 43,196 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19 लाख 21,811 वैक्सीन लगाई गई। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 11,793 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4 करोड़ 34,18,839 हो गई। मुल्क में हफ्तावार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.36% और यौमिया तस्दीक शुदा केसेस की शरह 2.49% है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 9,486 लोगों को कोविड से आजाद किया गया। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 27,97,092 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 98.57% है। आज मुल्क में फाल केसेस की तादाद 96,700 है। फाल केसेस कुल मुस्बित केसेस का 0.22% है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के मुताबिक भांग के इस्तेमाल को कानूनी करार दिए जाने से इसके बाकायदा इस्तेमाल में इजाफा हुआ और कोविड लॉकडाउन्स ने भी इसके इस्तेमाल में इजाफा किया है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और खुदकुशी का खतरा बढ़ गया है। भांग दुनिया भर में अरसे दराज से नशावर मवाद के तौर पर इस्तेमाल हो रही। अब न सिर्फ इसके इस्तेमाल बल्कि इसमें मौजूद नशावर मवाद की सलाहियत में भी इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों ने भांग के गैर तिब्बी इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दी हुई है। शुरुआत सन 2012 में वाशिंगटन और कोलोराडो से हुई। यूराग्वे ने इसे सन 2013 और कनाडा ने सन 2018 में उसे कानूनी हैसियत दी। वियना में कायमा UNODC की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा लगता है कि भांग को कानूनी हैसियत देने से मंशियात के रोजाना इस्तेमाल में इजाफे के रुझानात में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2020 में कोविड-19 के बाइस लॉकडाउन के अदवार में
भांग के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे नौ उम्रों में भांग के इस्तेमाल का फैलाव ज्यादा तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन नौजवानों में आला सलाहियत या ताकत वाली भांग के बार बार इस्तेमाल में वाज़े इजाफा हुआ है। भांग के बढ़ते हुए इस्तेमाल से सेहत की सहूलियात पर भी बोझ पड़ रहा। UNODC की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन में नशे के इलाज में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 30% अद्वियात भांग के नशे के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के बाज़ ममालिक में इलाज का सबसे बड़ा तनासुब भांग के नशे से मुंसलिक है। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड फ्लिपकार्ट। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।